consumption, aspiration, experience, and government policy. This was what we discussed yesterday. And moreover, we also understood the fact that over these things, one thing stands out, that is human behavior. ये भी हमने बात किया था, right? Yes, sir. So, मैंने आपको एक एग्जांपल लिखवाया था. We were doing an example of a person, Mr. Y. He had two options. One, investing in shares, and the second option was investing in banks. His perception was share market will give him quick returns. So this was his perception. So he decided to invest in shares. Okay. His aspiration, no, perception was share market will give him more profit. Aspiration में मैंने quick returns लिखवाया था. Same example लेते हैं. Share market will give him more profit. His aspiration was quick returns. The third thing was experience. His past investment in banks did not give him good returns, and definitely government policies, he found that share market is less regulated. Okay, this was the example that we were discussing. Okay, so एक व्यक्ति थे Mr. Y. He had option of investing in shares and banks. तो उन्होंने पहले अपना परसेप्शन बनाया कि भाई मुझे शेयर से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा. शेयर विल गिव हिम मोर प्रॉफिट. So that guy decided to invest in shares. उसने सोचा कि चलो मेरे को शेयर्स ज्यादा प्रॉफिट देगा, शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ. ठीक है. सेकेंड, उसका एस्पिरेशन था क्विक रिटर्न. सो ही डिसाइडेड कि चलो जल्दी रिटर्न शेयर से मिलेगा तो मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ. और पिछली बार उसने जब बैंक्स में इन्वेस्ट करा था तो उसका इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, इतने ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिले थे. सो ही अगेन डिसाइडेड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ. ठीक है. एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी में उसने देखा कि शेयर मार्केट इज लेस रेगुलेटेड. सो वी ऑलरेडी डिस्कस दैट इस चारों एक्सपेक्ट के बेसिस पे दिस गाय वुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट. बट one of his friend who was a bank manager who was on the verge of losing his job, ठीक है, बैंक मैनेजर थे वो, उसके जॉब लूज करने के वर्ज में था, तो उसने कहा कि यार प्लीज इन्वेस्ट इन माय बैंक सो आई कैन सेव माय जॉब. अब परसेप्शन, एस्पिरेशन, एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट पॉलिसी, इस सबको साइड में रखते हुए मिस्टर वाई डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन हिज फ्रेंड्स बैंक. सो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज ह्यूमन बिहेवियर can overthrow all these factors. ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर कैन ओवरथ्रो ऑल दिस फैक्टर्स. ये कल हमने बात किया था. आई होप यू गाइस रिमेंबर इट. मेरे को वो लास्ट पार्ट लिखवाना था, सो आई मेक यू राइट दैट. पहले यहां तक मैंने गवर्नमेंट पॉलिसीज तक लिखवा दिया था ना. गवर्नमेंट पॉलिसीज तक मैंने लिखवा दिया था ना. हाँ, आई वांटेड टू जो एक्सप्लेन करा था वो मैं लिखवा देता हूँ. मिस्टर वाई will invest in bank of his friend. Mr. Y will invest in bank of his friend. Who is a bank manager? Because his friend was desperate to fulfill his target.
we can conclude that we can conclude that economic decisions economic decisions are influenced by human behavior. Economic decisions are influenced by human behavior. Since human behavior is unpredictable, since human behavior is unpredictable, the laws of economics, the laws of economics are also fluctuating. Since economic decisions are highly influenced by human behavior, since economic decisions are highly influenced by human behavior, economics is considered as economics is considered as branch of humanities branch of humanities or social science, branch of humanities or social science. If you look at the laws of science, if you look at the laws of science, ब्रैकेट में लिख लो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री लिख लो, फिजिक्स केमिस्ट्री, they are absolute laws, they are absolute laws, they won't change, they won't change irrespective of situations. Whereas the laws of economics, the laws of economics are probable laws, are probable laws. They can vary, they can vary as per situations, they can vary as per situations. So economics is branch of humanities. देखो, मैंने कुछ नहीं समझाया है. If you look at very carefully, look at it very carefully. मैं आपको एक चीज बताऊं. Like I noted something. This was the first major Sunday in which I was teaching economics. ठीक है. एंड जब हम लोगों ने मतलब इकोनॉमिक्स फुल फ्लेज में रन होने के बाद, ओके, जब हम लोगों ने क्लास शुरू किया था, आई टोल्ड यू गाइस कि भाई कि one day you will miss the class, you will find difficulty in the next class. So what I was saying कि constantly there were 21 22 students. हाँ, नेटवर्क में कोई ऊपर नीचे हो रहा था, आई एग्री, बट जब फर्स्ट संडे आ रहा था ना, आज संडे 6 लोग एब्सेंट हो गए. सो लाइक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो रिजल्ट है, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन योर लर्निंग, इट डिपेंड्स लॉट ऑन योर कंसिस्टेंसी, किस प्रकार अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं. एनीवेज, देखो हमारा बहुत सिंपल कंसेप्ट था. एक पर्सन है वाई, वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, ही कैन इन्वेस्ट इन शेयर्स, और दैट गाय कैन इन्वेस्ट इन बैंक्स. अब दैट गाय कैन इन्वेस्ट इन बैंक्स, ठीक है. अब उस आदमी ने अपना परसेप्शन बनाया,
ठीक है, दैट पर्सन हैज डेवलप्ड अ परसेप्शन भाई शेयर्स प्रॉफिटेबल है, ज्यादा प्रॉफिट देगा, तो ही डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन शेयर्स। एस्पिरेशन उसका क्या था भाई, मेरे को जल्दी पैसा बनाना है, क्विक रिटर्न चाहिए, बैंक में तो नहीं मिलेगा क्विक रिटर्न, तो उसने क्या करा, प्रॉफिट बनाया शेयर्स में, मतलब उसने लिखा है कि मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ, क्विक रिटर्न मिलेगा, कि क्विक प्रॉफिट मिलेगा, तो ही ट्राई टू इन्वेस्ट इन शेयर्स। फिर उसने देखा कि यार एक्सपीरियंस, पिछले साल उसने जो बैंक में इन्वेस्ट किया था उसका बैंक के साथ बैड एक्सपीरियंस, ही हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद बैंक, सो उसने वहां पे भी इन्वेस्ट नहीं करा। फिर आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी की तरफ। जब उसने गवर्नमेंट पॉलिसी देखा तो उसने कहा यार शेयर्स लेसर रेगुलेटेड है, शेयर्स में ज्यादा मन करा तो कल बेच दिया, आज खरीद लिया, तो दिस इज लेसर रेगुलेटेड, तो मैं यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ। सडनली हिज, मतलब उसने पूरा मूड बना लिया है कि भाई आई विल इन्वेस्ट इन शेयर्स ओनली। सडनली हिज फ्रेंड कम्स एंड ही सेज कि भाई मेरी नौकरी चले जाएगी, तू मेरे बैंक में पैसा डाल दे वरना मेरा टारगेट मीट नहीं होगा। ही sacrifices everything and he invests in banks for his friend. Now what you can say is his decision was highly influenced by human behavior, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर। अब मेरा कहने का सिंपल मतलब है, साइंस जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लॉज जो है, ह्यूमन बिहेवियर से इन्फ्लुएंस नहीं होते, ठीक है। अगर आप एक ही प्रेशर टेम्परेचर को मेंटेन करोगे तो आप उसमें क्या ह्यूमन बिहेवियर करोगे, आप दो एसिड को मिलाओगे तो आपका ह्यूमन जो कर रहा है वो डिपेंड नहीं करता कि व्हाट एनजे, इफ फॉर एग्जांपल इफ एनजे इज मिक्सिंग टू कंपाउंड्स, और क्या बोलते हैं रेवज इज मिक्सिंग द सेम कंपाउंड, द रिजल्ट विल बी सेम ओनली। अगर रेशियो सेम है तो रिजल्ट सेम होगा, ठीक है। उसमें ह्यूमन बिहेवियर का कोई रोल नहीं है, मतलब आपका रेशियो सेम है, आपका क्वांटिटी सेम है, आपका प्रेशर टेम्परेचर सेम है, आपके कंपाउंड सेम है, तो रिजल्ट सेम होगा। बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता, इकोनॉमिक लॉस आर हाईली डिपेंडेंट। सोचो आप सोचो यहाँ से एक मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक टू पर्सन्स, ठीक है, साइंस और इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ, फिर हम एक और कॉम्प्लिकेटेड चीज में जाएंगे यहाँ इसे पिक करते हुए, ठीक है। फॉर एग्जांपल साइंस है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स है। एनजे है, एनजे ने एक बॉल को थ्रो किया ऊपर, बॉल को थ्रो किया, सेम वे में रेवज ने एक बॉल को थ्रो किया, ये बॉल कहां जाएगा, दोनों का बॉल कहां जाएगा, वेयर विल द बॉल गो, मतलब ऊपर थ्रो किया, फिर वो बॉल कहां जाएगा, कहां जाएगा बताओ। तो ऊपर ही जाएगा सर। ऊपर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, कितना ऊपर जाएगा, स्पेस में चले जाएगा। नहीं सर, जितना फिर फोर्स लगाया हुआ है उतना ही उसके बाद क्या होगा, नीचे आएगा। नीचे आएगा ना, तो दैट इज साइंस। मतलब एवरीथिंग दैट गोज अप विल कम डाउन, वो एनजे फेंके या रेवज फेंके, उसमें इन लोगों, इन दोनों का बस जो एक्शन है वो सेम है, बट जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट है। अगर ऊपर फेंका है तो पक्का नीचे आएगा, ठीक है, ऊपर फेंका है तो वो पक्का नीचे आएगा, लॉज ऑफ फिजिक्स, एवरीथिंग दैट गोज अप विल कम डाउन, ठीक है। बट इकोनॉमिक्स में एनजे है, रेवज है, ठीक है, दोनों के पास 100 रुपीज है, दोनों ने मन बना लिया कि भाई आज आइसक्रीम खाना है। एक जस्ट गिव मी मिनट, हेलो, क्लास क्लास, अरे क्लास चल रहा है क्या है, ओके। दोनों के पास 100 रुपीज है, दोनों ने माइंड बना लिया कि भाई खाना आइसक्रीम है, ठीक है, दोनों ने पूरा माइंड बना लिया खाना आइसक्रीम है। अब दोनों गए, 100 रुपीज लेकर आइसक्रीम लेने गए। अब एनजे जा रही है शॉप में आइसक्रीम लेने के लिए, तो एनजे ने आइसक्रीम ले लिया। अब जैसे ही रेवज आइसक्रीम लेने जा रहा है, ठीक है, रास्ते में उसको मिल गए, साहिल मिल गया। साहिल ने बोला यार आइसक्रीम कौन खाएगा, एक नया मोमोज आया मार्केट में,
वो ट्राई करते हैं, नहीं तो एक नया जूस आया है वो ट्राई करते हैं। अब इसने क्या करा, उसके थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर लिया, और उसका जो इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर होगा that got influenced by another human being. So what I wanted to say is economic laws are highly dependent on human behavior. So that subject is considered as branch of humanities or social science, whereas science laws are very much absolute. So that is considered as branch of science. Got the point? यस सर। सबको समझ में आ गया? सर ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको पूछूं, अभी तक हम इकोनॉमिक्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी? अभी तक आपने पढ़ा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ मैन, ठीक है, आपने पढ़ा। तो आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा, अभी तक हम इतने दिन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स ये एक स्टडी है ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन, ठीक है। अब ये प्राइमरी एक्टिविटी का स्टडी हो सकता है, सेकेंडरी एक्टिविटी का स्टडी हो सकता है, टर्शरी एक्टिविटी का स्टडी हो सकता है, ठीक है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन का स्टडी हो सकता है। हम ये सब पढ़ चुके हैं अगर आपको ध्यान होगा तो, ठीक है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन का स्टडी हो सकता है। सो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का स्टडी हो सकता है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन का स्टडी होता है। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ मैन, ठीक है, या किसी भी इकोनॉमिक एजेंट के एक्टिविटी को स्टडी करना है इस इकोनॉमिक्स, यही हमने पढ़ा था। और किसका स्टडी हो सकता है इकोनॉमिक्स? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन, और बताओ बताओ जल्दी बताओ। तुम लोगों ने पिछला रिवाइज किया था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का स्टडी हो सकता है। देखो यार, पिछला रिवाइज नहीं करोगे तो ना, मैं क्या, भगवान भी तुम्हें एग्जाम पास नहीं करवा पाएगा। यू हैव टू रिवाइज द प्रीवियस टॉपिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स किसी भी मैन के इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक स्टडी है, वो प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी का स्टडी हो सकता है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन का स्टडी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का स्टडी हो सकता है, ये इन सब चीज का स्टडी हो सकता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। बट मेरा क्वेश्चन सिंपल है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच का डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी? व्हाट डू यू थिंक? Economy is where all activities happen, and its study is known as economics, ठीक है। थोड़ा और कोई? और कोई? सरोज का आंसर मैंने पढ़ लिया। देखो, व्हाट आप जब बात करते हो कि भाई इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन, बट व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी? सोनल, अहिंसा, उमेश, रेवज, एनजे, पैलन, ओविप्रा, बताओ भाई, बताओ बताओ। इकोनॉमिक्स एज अ होल स्टडी ऑफ सोसाइटी। फॉर्मूला, economic particularly monetary of a state, economy refers to the money, no। देखो, मैं आपको थोड़ा और सिंपल वे में समझाता हूँ। सरोज का आंसर और अहिंसा का आंसर ठीक था। जिस चीज पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है साहिल, आई गॉट योर पॉइंट, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। देखो भाई, अगर मैं टर्म इकोनॉमिक्स की बात करूं, अगर मैं टर्म इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो इसका मतलब है कोई भी इंसान का प्राइमरी
सेकेंडरी या टर्शरी एक्टिविटीज के बारे में स्टडी, या हम इसको डायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी या इस एक्टिविटी को स्टडी करना, ठीक है, दिस इज इकोनॉमिक्स। या मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस को स्टडी कर रहा हूं। इन शॉर्ट में आई एम स्टडिंग एनीथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ एनीथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, किसी भी चीज की पढ़ाई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड, ठीक है। यहां पे कीवर्ड है स्टडी ऑफ एनीथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? पर अगर मैंने इसी इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को, इकोनॉमिक में बहुत सारे लॉस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, लॉस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, थियोरीज होता है, ठीक है, लॉस, प्रिंसिपल्स, थियोरीज। मैं इन सारी चीजों को किसी ज्योग्राफिकल एरिया के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं। जैसे सरोज ने काफी हद तक सही आंसर दिया था, एक दो लोगों ने और काफी हद तक बोला सही था। इकोनॉमिक्स के लॉस, प्रिंसिपल्स या थियोरीज किसी ज्योग्राफिकल एरिया के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं एक जगह का, फॉर एग्जाम्पल सिक्किम में एक जगह का नाम बताऊं, सिक्किम में कोई भी एक जगह का नाम बताओ, एक फेमस छोटा सा लोकेशन बताओ, एक विलेज या एक एरिया, जल्दी बताओ, मुझे नहीं पता इसलिए पूछ रहा हूं, मुझे इतना ही पता है जितना रहनौक, ठीक है भाई, मुझे नहीं पता है, उमेश ने बताया तो मैं उमेश, मेरे को ये पता भी नहीं है कहां पर है, ठीक है, रहनौक, ठीक है। अब समझो, अगर मैं इकोनॉमिक्स के डिमांड एंड सप्लाईज का लॉ, डिमांड एंड सप्लाई का लॉ, ठीक है, या इकोनॉमिक्स का कोई थ्योरी इस एरिया के रिस्पेक्ट में पढ़ रहा हूं, इस एरिया में कि लोग कितना कमाते हैं, लोग कितना स्पेंड करते हैं, लोगों का कंजम्पशन क्या है। मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां देख रहा हूं कि लोग हाउ मच दे स्पेंड, हाउ मच दे अर्न, हाउ मच दे इन्वेस्ट, अगर इस रहनौक एरिया के रिस्पेक्ट में पढ़ रहा हूं तो देन आई कॉल इट एज रहनौक इकोनॉमी। When you are relating the laws, you are relating the theories, you are relating the principles of economics to a particular area or a particular geographical region, then that is called as economic system or economy of that region. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज मैं इंडिया के डिमांड और सप्लाई की बात कर रहा हूं या इंडिया के पॉपुलेशन के इनकम की बात कर रहा हूं, तो मैं किस इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, किस इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इंडिया। अरे मिक्स कहां से आ गया यार? आई एम टॉकिंग अबाउट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन का इनकम की बात कर रहा हूं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, देन आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी, वेल सेड, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि भाई इकोनॉमी किसी स्टेट का हो, इकोनॉमी कैन बी ऑफ अ स्टेट, इकोनॉमी कैन बी ऑफ अ कंट्री, ठीक है, इकोनॉमी कैन बी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, मेंबर्स हैं, यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे कंट्रीज मेंबर्स हैं, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे कंट्रीज मेंबर है, तब मैं इसकी जीडीपी की बात कर रहा हूं, देन अगर मैं इसके जीडीपी की बात कर रहा हूं कि भाई यूरोपियन यूनियन, अब जीडीपी वाला जिसको नहीं आता डोंट वरी, वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है, आगे जाकर हम इसकी बात करेंगे जीडीपी वाला क्या है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में अगर बहुत सारे मेंबर्स हैं, जब मैं उस कंट्रीज का ओवरऑल टुगेदर जीडीपी की बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं कि यूरोपियन यूनियन के इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। अगर मैं सोच रहा हूं कि साउथ एशियन कंट्रीज के जीडीपी की बात कर रहा हूं, तो मैं साउथ एशियन को एज एन होल लेकर उस रीजन की इकोनॉमी की बात कर रहा हूं।
देखो, तो इकोनॉमी जरूरी नहीं है किसी कंट्री का। इकोनॉमी कैन बी ऑफ तमिलनाडु, इकोनॉमी कैन बी ऑफ केरला, इकोनॉमी कैन बी ऑफ सिक्किम, इकोनॉमी कैन बी ऑफ कश्मीर, इकोनॉमी कैन बी ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया, इकोनॉमी कैन बी ऑफ कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जो कि अभी बहुत परेशान है। ठीक है, इकोनॉमी कैन बी ऑफ कंट्रीज लाइक श्रीलंका, इकोनॉमी कैन बी ऑफ कंट्री लाइक जापान, economy can be country of country like USA, economic can be of country like groupings like European Union, मतलब यूरोप की कंट्रीज, यूरोप की इकोनॉमी में पढ़ सकता हूँ, मैं एशियन इकोनॉमी को पढ़ सकता हूँ। ठीक है, मैं अलग अलग कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी को पढ़ सकता हूँ, भाई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी ये है। सो इकोनॉमी कैन बी रीजन वाइज, कंट्री वाइज, स्टेट वाइज। क्यों? बहुत सिंपल है ना, कि कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया है उसके रिस्पेक्ट में मैं इकोनॉमी के थ्योरीज, प्रिंसिपल्स इन सबको पढ़ रहा हूँ, तो देन दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, देखो मैं एक बात बताता हूँ। अगर क्लास में आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज, एनी बडी कैन, ठीक है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर कोई दूसरा यस बोल रहा है तो यू डोंट हैव टू लाइक, ठीक है, आपको भी हाँ पे हाँ मिलाने की जरूरत नहीं। यू कैन लाइक टेल मी कि भाई मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है, बिकॉज आपको अपना पेपर खुद देना है। ठीक है, तो डोंट हाइड अवे, कि पीछे मत रह जाना। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। Principles of economics, principles of economics, laws and theories, principle of economics, laws and theories, principles of economics, laws and theories, studied with respect to, studied with respect to a geographical region, studied with respect to a geographical region, is called as economic, economy or economic system. I'll repeat once again. Principle of economics, laws and theories studied with respect to geographical region is called as economy or economic system. When laws and theories, when laws and theories are applied over, when laws and theories are applied over ब्रैकेट में लिख लो, लॉस एंड थियरीज ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके, लॉस एंड थियरीज ऑफ इकोनॉमिक्स आर अप्लाइड ओवर इंडियन टेरिटरी, then it will be called as Indian economy. Economy can be visualized. Economy can be visualized at different levels: international level, continental level, continental level, regional level, international level, continental level, regional level, local level, etc.
ठीक है, अभी मैंने आपको एक चीज बताया कि भाई हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स, ध्यान से देखिए प्लीज इसको, इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ, इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ, एक की वर्ड पे अंडरलाइन किया मैंने, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ, एक इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ, एक मिनट यार, इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन। ठीक है, अब वो कोई भी एक्टिविटी हो सकता है, आपको पता है कि कितने टाइप के एक्टिविटी होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, या आप इसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ लिंक कर सकते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन के साथ रिलेट कर सकते हैं, वो दैट यू नो। एंड इकोनॉमी की बात करें, किसी भी इकोनॉमी की बात करें, व्हेन यू आर लिंकिंग द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स, when you are linking the principles, theories and laws, when you are linking the principles, theories and laws of economics, ठीक है, when you are linking the principles, theories and laws of economics to particular region, किसी भी रीजन के साथ आप लिंक करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी इकोनॉमी के प्रिंसिपल, सीरीज ऑफ लॉज को इंडिया के साथ लिंक करेंगे, इंडिया के रिस्पेक्ट में सीखेंगे, तो आप उसको क्या कहेंगे, इंडियन इकोनॉमी। अगर आप उसको, हो सकता है कि आप उसको यूएस के साथ देख रहे हैं तो देन यू विल कॉल इट यूएसएस इकोनॉमी। अगर उसको जापान के साथ देख रहे हैं तो यू विल कॉल इट एज जापानीज इकोनॉमी। आज आप बात करते हैं ना कि कोई भी अनम्यूट करो, जस्ट अनम्यूट करो, कोई भी अनम्यूट करो यार, फास्ट क्विक। तुम लोग जब तक सोच समझ के अनम्यूट करोगे तब तक देश का जीडीपी बढ़ चुका होगा। उमेश, उमेश, आज आप Yes, बात sir. कर, आज आप बात करते हैं ना कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है, Yes, sir. ठीक है, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दिया, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दिया, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो इससे पाकिस्तान को फायदा होगा, नुकसान होगा? So, नुकसान होगा सर, नुकसान। नुकसान, इकोनॉमिकल बेसिस पे आपको नुकसान होगा, इकोनॉमिकल बेसिस पे पाकिस्तान को नुकसान होगा, बिकॉज पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, ठीक है। तो आपने, तो पाकिस्तान को आप जब उधर के प्रॉफिट और लॉस पाकिस्तान के टर्म्स में आप एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है, आपने क्या बोला, इधर देखो, इंडिया है, इंडिया है और आपके साथ पाकिस्तान है, ठीक है, हमारा और उनका प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू सर्टेन इश्यूज इंडिया और पाकिस्तान का प्रॉब्लम चल रहा है। जस्ट अ मिनट, हाँ, हेलो हेलो, मैं क्लास में हूँ, क्लास में करता हूँ, हेलो, मैं क्लास में हूँ, क्लास में करता हूँ, कॉल करता हूँ। आज जिनका भी रिजल्ट आया ना, दे हैव कम टू दिल्ली, सो जिनका भी यूपीएससी का रिजल्ट आया, ऑल दोस एस्पिरेंट्स हु हैव क्लियर, दे हैव कम टू दिल्ली। सो एनीवेज, इंडिया और पाकिस्तान का दो कंट्री है, इनके बीच में एक प्रॉब्लम चल रहा है। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दिया, इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने क्या करा, कैंसिल करा। इससे पाकिस्तान का आपको पता है लॉस होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा, क्योंकि उनका एग्रीकल्चर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब हम उस लॉस, प्रॉफिट और लॉस को पाकिस्तान के टर्म्स में एस्टिमेट कर रहे हैं, एंड प्रॉफिट और लॉस आर द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसको जब पाकिस्तान एज अ रीजन के टर्म में एस्टिमेट कर रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी इकोनॉमी, ठीक है।
समझ में आ गया? अगर हम ये बोल रहे हैं कि इंडस वाटर का पूरा पानी उठा के हम यूज करेंगे और इंडियन इकोनॉमी प्रॉफिट में चले जाएगा, इंडियन इकोनॉमी, तो हम जब इस प्रॉफिट जो एक इकोनॉमिक का टर्म है उसको इंडिया एज अ रीजन के टर्म में यूज करें, देन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है? उमेश, किसने यस बोला? अभी उमेश ने यस बोला। आपका क्या ओपिनियन है जो अभी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो क्राइसिस चल रहा है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है? आप अभी पॉलिटी पढ़ चुके हैं, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, दोनों देश की हिस्ट्री आपको पता है, आपको पॉलिटिकल सिनेरियोस पता है, अब आप एक मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बताओ। करंट अफेयर्स इज आल्सो अ टॉपिक दैट कैन कम इन योर सिलेबस, नो? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? किसी का कोई ओपिनियन ही नहीं है। रेवज, टेल मी व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? Sir, don't think it is a terrorist doing. Sir, don't think. Samir says, don't think it is a terrorist doing. मुझे समझ नहीं आया. Like, you can keep your opinions, right? तुम लोग इतना मतलब इंट्रोवर्ट होके क्यों पढ़ते हो? एक्सप्लोर द वर्ल्ड, राइट? तुम अपना ओपिनियन तो दे सकते हो दोस्तों. समीर, अनम्यूट करो. नॉट पॉसिबल. नोबडी. बैकग्राउंड, कोई बात नहीं, कोई बेबी रो रहा होगा तुम्हारा, कोई बात नहीं, बोल दो, म्यूट कर लो, हम उसको एडजस्ट कर लेंगे. अहिंसा, हाँ, अहिंसा का कुछ ओपिनियन है, बोलो अहिंसा. सर आई थिंक द ट्रीटी वो ज्यादा समय तक it cannot be like issued. No, I'm not talking about the treaty only. I'm talking about the overall scenario कि जो पहलगाम में अटैक हुआ, ठीक है, और ट्रीटी सस्पेंड हुआ. पाकिस्तान has said that they are suspending Simla agreement. What is your take on that? As a student of political science or as a student of competitive exam, what is your take on that? So though India has banned the Indus treaty, but also it would affect the non-terrorist group like locals. Locals are also in. So your take on that is Indus Water Treaty को जो इंडिया ने स्टॉप किया है, it should not have been done because वो पाकिस्तानी locals को affect करेगा, right? Somewhat it should be done, sir, but is the negative impact will be faced by. It should be done or it should not be done? No, sir. Humanity. अच्छा, तो टेररिज्म इज नॉट ह्यूमैनिटी. ठीक है, कोई बात नहीं. यू हैव एन ओपिनियन दैट इट शुड नॉट बी डन. ओके. पैल्चन का ओपिनियन है वॉर होना चाहिए, ये अलग लेवल पर ऑपरेट कर रहा है. पैल्चन, व्हाट्स योर ओपिनियन? नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड सिनेरियो. ओके, सरोज, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? नो सर. ओके, पैल्चन, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? सी, आई वांट योर ओपिनियन. अरे तुम कैसे बच्चे हो यार, तुमने पॉलिटी पूरा पढ़ लिया, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, तुम एक ओपिनियन जनरेट नहीं कर पा रहे हो. पैल्चन अभी बोलेगा मैंने नहीं पढ़ा. सर मैं तो नया आया हूँ सर. मुझे पता ही, यही बोले. अभी जिसका फोन आया ना, he has got rank under 10 के अंदर आया, वो भी मुझसे यही बोलता था कि कुछ भी पूछो मना कर देता था. मतलब यूपीएससी में he got 7 और 8 रैंक मुझे याद नहीं एग्जैक्टली. अच्छा, एक बात बताओ पैल्चन, व्हाट इज योर ओपिनियन? सर ओपिनियन ओपिनियन का मतलब होता है कि आप क्या कहना चाहते हैं इस जो सिनेरियो के बारे में. सो बेसिकली सर लाइक अटैक नहीं होना चाहिए था, और लाइक वैसा नहीं होता तो लाइक ऐसा सीनरी क्रिएट ही नहीं होता था ना सर. क्या नहीं होता था भाई? ऐसा सीन ही क्रिएट नहीं होता था सर. सीन क्या क्रिएट नहीं होता, मैं समझा नहीं. ये सर ट्रीटी ऑफ लाइक इंडस वो कैंसिलेशन होगा, शिमला ये जो एग्रीमेंट है ये कैंसिल. आपका ओपिनियन है ये ऐसा होना नहीं चाहिए था अगर टेररिस्ट एक्ट नहीं होता तो, राइट? जी सर. ओके, सो यू आर सेइंग कि अगर टेररिस्ट को रोकना चाहिए, राइट? हाँ यस सर. ओके. Anybody has any
female candidate who wants to have an opinion. भाई आप लोग opinion ही generate नहीं कर पा रहे हो. सरोज का एक opinion था, so that was a strong opinion. NJ, what's your opinion? मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है कि मैंने पॉलिटी पढ़ा दिया, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दिया, एंड यू आर नॉट एबल टू जनरेट एन ओपिनियन. एनजे, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? अरे अनम्यूट कर लो, कोई टेक नहीं. सॉरी, कांट अनम्यूट. ओके, रेवज कैन यू अनम्यूट? और कोई मेरे को नाम दिख नहीं रहा है यहाँ पे ना, मेरे को इधर जाना पड़ेगा, रुको. ओबिप्रा, ओंगमुला, साहिल, उमेश, पैलदन, इनमें से कोई तो कर लो भैया. उमेश, पैलदन का ओपिनियन है पीओके. पैलदन अनम्यूट करो. मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता हूँ इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ने से पहले. मैं देखूं तो सही कितना न्यूज पढ़ते हो, क्योंकि हो सकता है मुझे करंट अफेयर्स पढ़ाना पड़े. टैनसिंग हैज एन ओपिनियन. Hello, sir. What's your name? How do you pronounce your name? Okay, my name is Tenzing Zangmu Lepcha. अच्छा, Tenzing is fine, ठीक है. Now just tell me what's take on that. So, first of all, I'm also new to this group. Okay. So that means I have not gone through all your previous classes. Teachings on polity. Got it. Yeah, polity and history. But even though you were like going through the news about this recent incident, recent what development. I feel is like regarding this India's take on this, it is definitely going to give more problems to the locals of Pakistan also. So we have to see it from we have to we can't go directly on war and anything like that, because we have to see the people also. When I follow what you are trying to say, suspending Indus Water Treaty can have a negative impact on the population of Pakistan. So we as a people, as a country, we need to be sympathetic to them, and we need not to take such harsh decisions, right? I think they need to have more work on it. Our leaders are there, so they have to work on this thing. They need to come up with other option or other solution. Other alternatives means how? Give me a few alternatives. What is in your mind? I don't have right now the exact one, but I feel that the locals are suffering. No, people, citizens are, and beside that, it's my personal opinion that I'm not happy with the Hindu-Muslim conflict that is happening in a way. Because of all this terrorist attack, everybody is blaming the one community. That should not be there, because it's not the fault of everyone. So it is not that if the person belongs to a certain religion or community doesn't mean the whole community or the religion is bad. So these are the things we have to look into. Huge respect to your opinion. Well spoke, very well spoke. Nicely you kept your opinion. Good. I have huge respect for your opinion. Sahil states the step India took this time was going into the right direction. If they just neglect this kind of acts, then the terrorism will keep going. And as we all know, that many terrorist groups are funded by Pakistan. So in order to take measures, India decided to weaken the economy of Pakistan by this treaty, suspending this treaty is what he means, and give a strong message to Pakistan that we will not stay quiet now. Sahil has given his opinion that suspending Indus Water Treaty is a right thing. Now, anybody who can unmute them, anybody who can have a conversation with me on this, unmute. मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँ. Palden is unmuted.
है ना? So, And then मैं एक चीज पूछता हूँ, ठीक है, मैं एक चीज पूछता हूँ, लाइक यू ऑल गाइज हैव समबडी, आपने सुना होगा ओपिनियन, साहिल का ओपिनियन सुना होगा, समीर का ओपिनियन सुना होगा, टेंजिंग का ओपिनियन सुना होगा, ठीक है. सम ऑफ देम हैज सेड दैट इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करना इज अ रॉन्ग थिंग, ठीक है, yes, sir. because the Pakistani population is going to suffer. Some of you might have said Indus Water Treaty, जैसे साहिल ने बोला, to suspend Indus Water Treaty, it is a right thing. बिल्कुल सही किया, because Pakistan needs to be answered in the way they are sponsoring the terrorism, right? So there are two opinions, ठीक है. Now understand, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने से पाकिस्तान के ऊपर इमीडिएट इंपैक्ट क्या आएगा? So obviously there is a negative impact, as there will be economic imbalance. How? So because of sir, agriculture, मतलब पाकिस्तान में पूरा वो, they are depend on agriculture. So because of अगर एक river का flow stop होगा तो there will be a drought. So the production of, ठीक है, मेरे एक क्वेश्चन का जवाब देना पहले, वेल स्पोक, ठीक है. ये इंडस रिवर है, ठीक है, ऐसा, ठीक है. जब इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की बात कर रहा है, तो उनका ये कहना है कि जो इंडस वाटर से जो पानी बहता है, ऐसा, ठीक है, इंडस वाटर से जो पानी पाकिस्तान की तरफ बहता है, इसको स्टॉप कर दिया जाएगा, राइट? दिस वुड बी स्टॉप्ड, राइट, है ना? ये कह रहे हो ना, है ना? और आप कह रहे हो इसकी वजह से पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सिस्टम और पाकिस्तानी इकोनॉमी, अब तो इकोनॉमी का मतलब समझ में आ गया होगा, बिकॉज वी आर एस्टिमेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस विद टर्म्स ऑफ पाकिस्तान एज अ रीजन, ठीक है, ये वीकन हो जाएगा. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. नाउ जस्ट टेल मी, हाउ विल यू स्टॉप दिस? हाउ विल यू स्टॉप द वाटर? stop the water. So first of all, जो डैम है झेलम, मतलब जो डैम है वहां पे, मतलब अभी सर जितना डैम है, जो इंडस वाटर, जो इंडस रिवर का वाटर फ्लो कंट्रोल कर रहा है सर. आई थिंक सर ज्यादातर कंट्रोल नहीं कर सकेगा इंडिया पानी. तो फिर पाकिस्तान को प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई, पहले एक चीज समझो, ठीक है, इंडिया ने बस ये बोला है हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देंगे, ठीक है. हम कोई पाकिस्तान को हमने ऑफिशियल मैसेज दिया है क्या हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देंगे? कोई डिप्लोमेटिक चैनल से, I'll give you vital information, okay? Now listen, I'm giving you top source information, ठीक है. Yesterday was Saturday, right? On Friday मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में से कुछ ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में पाकिस्तान एम्बेसी के, पाकिस्तान हाई कमिश्नर ऑफिस इन इंडिया जो न्यू दिल्ली में है, सम डिप्लोमेट्स ऑफ पाकिस्तान वर कॉल्ड इन द ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है. उसमें पाकिस्तान को बहुत सारी, मतलब पाकिस्तान का एक हाई कमिश्नर ऑफिस है, ध्यान से सुनना, ठीक है, पाकिस्तान का हाई कमिश्नर ऑफिस है न्यू दिल्ली में. सेम वे में इंडिया का हाई कमिश्नर ऑफिस है इस्लामाबाद में. इधर से कुछ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को बुलाया था और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियरली उनको ये समझाया कि बेटा, तुम लोगों ने एक एक्ट ऑफ टेररिज्म को स्पॉन्सर किया है, हम कुछ एक्शंस लेंगे. फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान हाई कमिश्नर ऑफिस जो न्यू दिल्ली में है, उसका पहला स्ट्रेंथ 55 पीपल था, 55-60 था, उसको रिड्यूस करके 30 कर दिया गया. बोला बाकी लोगों को वापस भेजो. द सेकेंड एक्शन वाज ऑल द पाकिस्तानी सिटीजन्स हु वर इन इंडिया, उनको भी वापस भेजने की बात करी है. बट माय डियर फ्रेंड्स, देयर वाज नथिंग टॉक्ड अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी. ऐसा कहीं पे भी ऑफिशियली पाकिस्तान को ये नहीं बताया गया कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ठीक है. आई डू एग्री ऑन द डिप्लोमेटिक लाइंस, बहुत सारे लीडर्स ने इसके ऊपर बात करा होगा, बट ऑफिशियली जब तक इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं करा गया, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पाकिस्तान इज वरिंग सो मच. नाउ पाकिस्तान एज अ कंट्री हैज पैनिक्ड इन दिस सिनेरियो, ठीक है. आई विल टेल यू,
I'll tell you, once I tell you all the scenarios, you tell me what you feel right now. Pakistan has really panicked. Up, I'll tell you few scenarios that has happened as a student of political science or as a researcher in political science. If you, what I have felt is few incidents have taken part in last few days. For example, number one incident, पहला incident. Let us quote incidents one by one. जो पहला इंसिडेंट था, पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर ऑफिशियल्स ने, एक मिलिट्री के सीनियर ऑफिशियल ने एक स्टेटमेंट दिया था मीडिया में आकर कुछ दिन पहले. वो स्टेटमेंट आप यूट्यूब में जाकर सुनते हैं. ही सेड अबाउट टू नेशन थियोरी. ही टॉक्ड अबाउट टू नेशन थियोरी, और ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं. एंड ही सेड इंडिया एंड पाकिस्तान are two nations based on religion. भारत और पाकिस्तान दो देश हैं based on religion. They cannot stay together. मतलब वो बिल्कुल साथ में रह ही नहीं सकते. This was a provocating statement given by a senior Pakistan military official way before this attack took place in the Pahalgam. ठीक है, way before, उससे पहले two nation theory की उन्होंने बात करी. एंड दिस वाज अ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, और इंडिया ने उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बिकॉज पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बहुत सारे रिस्पॉन्स आते रहते हैं, बीच बीच में स्टेटमेंट्स आते रहते हैं. ठीक है. नाउ सेकेंड थिंग दैट हैपेंड वाज, ये हो गया, यूएस वाइस प्रेसिडेंट वाज इन इंडिया. ठीक है, यूएस वाइस प्रेसिडेंट वाज इन इंडिया एंड इंडिया वाज हैविंग अ वेरी गुड डिप्लोमेटिक टॉक्स विद यूएसए. मतलब यूएस वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में थे और इंडिया का बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक टॉक चल रहा था यूएसए के साथ. सेम वे में इंडियन प्राइम मिनिस्टर वेंट टू सऊदी अरेबिया. ठीक है. एंड जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया में गए और यूएस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में थे, इंडिया और यूएस के बीच में बहुत एग्रीमेंट साइन करना था, और इंडिया और सऊदी अरेबिया के साथ में भी बहुत सारे डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट साइन करने थे. एंड सऊदी अरेबिया इज कंसिडर्ड एज वेरी क्लोज कंट्री विद पाकिस्तान. जब ये दोनों इंसिडेंट हो रहा था तो पाकिस्तान फेल्ट लाइक वी शुड स्ट्राइक. ठीक है. नाउ दिस अटैक, नाउ people can have different opinion that this attack was not sponsored by Pakistan. People can have an opinion that this attack was sponsored by Pakistan. But same day में जब अगले दिन सऊदी अरेबिया के प्रिंस किंग के साथ ये ट्रीटी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने साइन करवा था, द अटैक टुक प्लेस ऑन पहलगाम. ठीक है. अटैक टुक प्लेस ऑन द 28 Indian tourists got killed. 28 Indian tourists got killed. 17 were admitted. People were asked before shooting them, people were asked which religion you are following. उसके बाद उनको मारा गया. ठीक है. अब any religion, let us not get into that. जो भी उनका religion पूछ के मारा गया, one of the most heinous incident that has taken place, because in पिछले अगर 50-60 साल की हिस्ट्री में देखोगे, never the civilians has been directly targeted. ठीक है, बालाकोट में अटैक हुआ या कहीं पे भी अटैक होता है तो आर्म फोर्सेस को टारगेट किया जाता है, सिविलियंस को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया जाता. दिस टाइम सिविलियंस वाज टारगेटेड बिकॉज जिसने भी अटैक किया दे वांटेड टू टारगेट द बूमिंग इकोनॉमी ऑफ कश्मीर. टूरिज्म जो एक बूमिंग इकोनॉमी था उसको टारगेट करना था. वी लॉस्ट 28 लाइव्स. ठीक है, वी लॉस्ट 28 लाइव्स. नाउ इंडिया सेड वी विल टेक रिवेंज ऑफ द सिनेरियो. हम लोग इसका बदला लेंगे एज अ कंट्री. ठीक है. Any person involved in this act of terrorism will be crucially punished. But we have never taken the name of Pakistan. आप मुझे किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट में कहीं भी बता दो क्या हमारे, और ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना है कि इंडिया ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है. हाँ, इंडियन मीडिया हैज टेकन, बट मीडिया के स्टेटमेंट को आप कैसे ले सकते हो? इंडिया हैज नेवर सेड द पाकिस्तान नेम कि पाकिस्तान ने करवाया. इंडिया हैज सेड दैट whoever is behind this incident will be brought into the limelight and they will be critically punished, severely punished. इंडिया ने पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं लिया है. इफ यू सी, कल पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल, उनके प्राइम मिनिस्टर, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, सब ने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है. उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जाके देखना. उसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि इंडिया हैज नॉट टेकन द नेम ऑफ पाकिस्तान, बट दे आर assuming that India is going to hit them.
Now everything what they are doing is based on assumption and media reports के basis पे. चलो, let us assume that India is going to hit Pakistan because India believes that Pakistan has sponsored the act of terrorism. अब मान के चलो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दिया. India has suspended Indus Water Treaty. Let us go on that lines also. Indus Water Treaty कैंसिल करने का मतलब है 1965 के वॉर में के टाइम, 1971 के वॉर के टाइम एंड 1999 के कारगिल वॉर के टाइम. दिस आर द थ्री मेजर वॉर दैट इंडिया हैज फॉट विद पाकिस्तान. आफ्टर दैट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में इंडिपेंडेंस की लड़ाई के बाद दिस आर द थ्री मेजर वॉर्स. 19 इस टाइम पर भी हम लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं करा था. नाउ दैट वी आर इन द ईयर ऑफ 2025 और हम कह रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना. अरे भैया कैसे करोगे? आप कैसे करोगे? आप बोल रहे हो कि इंडिया से इंडस वाटर से जो पानी जा रहा है, ठीक है, इंडस वाटर से पानी जा रहा है, उसको रोक दोगे. अरे कैसे रोकोगे? बाल्टी में भर लोगे. How will you stop it? You have to build dams here and in order to construct these dams, huge dams, ऐसा नहीं है कि आप एक आधा डैम बनाओगे. You have to construct multiple dams. You need $1 billion you need, and you need approximately 12 years to construct those dams. 12 years. और अगर इंडिया उस पानी को रोक लेगा तो उस पानी का करेगा क्या? अगर वो इस साइड को रिवर्स फ्लो करवाएगा तो चलो मान के चलो 10% पानी उसने जम्मू कश्मीर में यूज कर लिया, कुछ परसेंटेज पंजाब और उस रीजन में यूज कर लिया. भाई बाकी पानी से अगर इधर की तरफ फ्लो करेगा तो इंडिया की तरफ फ्लड हो सकता है, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा. तो 12 इयर्स के बाद ही हम लगभग, आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम 10 to 12 years to construct those dams, and you require $1 million investment in that to construct that dam. ठीक है, और आप ये कह रहे हो कि इंडस वाटर ट्रीटी के वजह से पाकिस्तान परेशान हो गया. Now, what Pakistan has done? Palden, किसने आंसर दिया था? Palchen was the person who answered. Indus Water Treaty हम लोगों ने सस्पेंड किया, तो पाकिस्तान ने क्या किया? What did Pakistan do? बताओ, पाकिस्तान ने क्या किया? बताओ. Anybody? एयर स्पेस बंद कर दिया. ठीक है, मतलब एयर स्पेस तो इस वजह से सरोज बंद किया कि उनको लगता है कि हम एयर के थ्रू अटैक करेंगे. ठीक है, एयर के थ्रू अटैक करेंगे, उनको ऐसा लगता है. बट मैं आपको बता दूं, हम एयर के थ्रू अटैक नहीं कर रहे हैं उन पे. ठीक है, ये उनकी गलत फहमी है. हम पहला स्ट्राइक नेवी के थ्रू करेंगे. ठीक है. Like one question, sir. हाँ. So like yesterday or the question, the cabinet committee that foreign secretary briefed in the interview that also that Indus treaty will be banned. So what we can assume, like for what we can assume from that statement, sir? I could not understand. So like foreign secretary like Vikram ji told that Indus treaty will be banned. No, sir. देखो, पहली चीज What we can assume, sir? मैं आपको बताता हूँ. इंडस ट्रीटी सस्पेंड हो सकता है. इंडस ट्रीटी ऐसा नहीं है कि इंडिया इंडस ट्रीटी से सस्पेंड नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है. जैसे फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला, इंडस ट्रीटी कैन बी सस्पेंडेड. बट इंडस ट्रीटी के सस्पेंड करने से, इंडस ट्रीटी का मतलब हम पाकिस्तान की तरफ पानी रोक देंगे. ठीक है, या पाकिस्तान की तरफ हम उनको इन्फॉर्म करे बिना उधर की तरफ के डैम के सारे शटर्स खोल देंगे. वी कैन डू टू थिंग्स, राइट. एक, पानी रोकना, वी कैन क्लोज द वाटर फ्लो टू द पाकिस्तान. दूसरा, सडन ओपनिंग ऑफ द शटर्स ऑफ द डैम सो दैट पाकिस्तान का कुछ एरिया फ्लड में हो जाए. ठीक है. I have read somewhere also that you cannot, under that some international agreement, you cannot close or change the direction of the flow. No, that also. हाँ, मतलब once the treaty is not there, you can do anything. No, once the treaty is not there, you can do anything. तो आपके पास दो ऑप्शन है. You can close the shutter. Without this treaty also, if there is a natural river flowing, that the direction cannot be changed. I have learned somewhere, sir. नेचुरल रिवर का डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते बेटा, बट आप उसके वाटर को फ्लो को ब्लॉक कर सकते. Yes, sir. I mean to say that only that you cannot block for long time. You can only block for certain period.
that is also written in somewhere in treaty. Sir, that I was हाँ तो confused. भाई अगर बेटा ट्रीटी ही नहीं रहेगा तो हम उसको फॉलो क्यों करेंगे? वो ट्रीटी में ही लिखा है, दैट ट्रीटी में ही लिखा है जो आप स्टेटमेंट्स कह रहे हैं वो बेटा ट्रीटी में ही लिखा है कि आप फ्लो को चेंज नहीं करेंगे, आप उसको क्लोज करने से पहले बताएंगे, ओपन करने से पहले बताएंगे। जब ट्रीटी ही नहीं रहेगा तो हम उसको फॉलो क्यों करेंगे? So like in one of the like America treaty, what it was written like that. No, we will not follow that America treaty. नो नो, व्हाई विल वी फॉलो? Oh, okay, sir. ठीक है, अगर हमारे और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर एक ट्रीटी साइन हुआ है तो हम उस ट्रीटी के बेसिस पे काम करेंगे। बट देखो नाउ कमिंग द मेजर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज व्हाट लाइक फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी सेड दैट फॉरेन सेक्रेटरी सेड हम द इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करेंगे। नाउ दैट इज पुटिंग अ डिप्लोमेटिक प्रेशर ऑन पाकिस्तान, दैट इज पुटिंग अ डिप्लोमेटिक प्रेशर ऑन पाकिस्तान कि भाई ये अब एक एग्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में आ चुके हैं, एक एग्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में आ चुके हैं एंड दे आर विलिंग टू अटैक ऑल्सो, दे आर विलिंग टू अटैक ऑल्सो। दिस इज नॉट, इससे पाकिस्तान को अभी इमीडिएट इंडस वाटर ट्रीटी से उनको कोई नुकसान नहीं होगा, बट the decision to suspend Indus Water Treaty is putting a very high diplomatic pressure on Pakistan. For example, जब विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के कस्टडी में थे, इंडिया के गुजरात पोर्ट से एक नेवल शिप पाकिस्तान के कराची पोर्ट की तरफ गया था, एक नेवल शिप पाकिस्तान की कराची पोर्ट की तरफ गया था, एक नेवल शिप, बट हमने उससे कोई अटैक लॉन्च तो नहीं करा, बट वी पुट अ डिप्लोमेटिक प्रेशर कि भाई हम अटैक कर सकते हैं। सो सस्पेंडिंग इंडस वाटर ट्रीटी इज पुटिंग ह्यूज सॉर्ट ऑफ डिप्लोमेटिक प्रेशर ऑन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने यहां पे क्या गलती कर दिया, पाकिस्तान एज अ कंट्री ने, आप एक चीज भूल गए, जैसे ही इंडिया ने बोला हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान ने कहा हम शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर रहे हैं, हम शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर रहे हैं, बोला पाकिस्तान ने हम शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर रहे हैं। और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना उन्होंने बोला इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर, एक वॉर वाला सिनेरियो। अरे भैया अगर आप शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड करते हैं, शिमला एग्रीमेंट में ये साफ साफ लिखा है कि बोथ द नेशंस विल रिस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ना इंडियन आर्मी या इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान में एंटर नहीं करेगा और पाकिस्तानी आर्मी इंडिया में एंटर नहीं करेगा। अब तुम लोगों ने खुद ही उसको सस्पेंड कर दिया है, इंडिया पाकिस्तान में आराम से एंटर हो जाएगा। और कल को तुम लोग पूछोगे कि क्यों एंटर हुए, तो बोलना हमारे साथ कोई एग्रीमेंट थोड़ी है। Now, me and Palden has an agreement, और me और Palchan has an agreement कि भाई मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा और तुम मेरे घर नहीं आओगे। सडनली Palchan एक दिन उठे और बोला कि मैं इस एग्रीमेंट को सस्पेंड कर रहा हूं, आई एम सस्पेंडिंग दिस एग्रीमेंट, ठीक है, तो कल मैं इसके घर पे अटैक कर लूंगा, ये मेरे से कैसे पूछेगा कि भाई तुम क्यों आए, हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं ना। सो पाकिस्तान हैज अननेसेसरली पैनिक्ड, ठीक है, अननेसेसरली पैनिक्ड। अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करा तो यू शुड हैव गॉन टू द वर्ल्ड बैंक एंड सेड कि भैया वर्ल्ड बैंक ने ट्रीटी को पूरा फॉर्मुलेट करा था, आपको वर्ल्ड बैंक जाना था और बोलना था कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया, तो इंडिया वुड हैव बीन आंसरेबल टू द वर्ल्ड बैंक। बट आपने एक दूसरा ट्रीटी सस्पेंड कर दिया, शिमला एग्रीमेंट, ठीक है। आप देखो पैनिक का लिमिट क्या है, पैनिक का एक्सट्रीम केस क्या है। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कौन सा देश होता है जहां पर प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, मतलब सीनियर 4-5 कंट्री के टॉप नॉच 5 ऑफिशियल्स बैठ के मीडिया के क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, एश्योरिंग द पॉपुलेशन कोई नहीं, हम अटैक के लिए रेडी है, हम अटैक के लिए रेडी है, बट हाँ इंडिया एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन चाहता है तो हम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए भी रेडी है। दे आर एश्योरिंग देयर पॉपुलेशन। इंडिया में से आप मेरे को बताओ कितने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, कितने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए जहां पर प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या कोई सीनियर मिनिस्टर ने आकर मीडिया को ये बोलने की कोशिश करी कि भाई ये हमारा सिनेरियो। वी सेड आवर प्राइम मिनिस्टर हैड अ स्पीच इन बिहार, जिन्होंने बोला कि वी विल नॉट, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उन्होंने साफ साफ अक्षरों में ये बोला कि इफ एनीबडी हु इज इन द back of the like who is involved in this act of terrorism will be punished.
will be punished brutally. ये हम लोगों ने बोला. अरे हम लोगों ने क्या बोला है? Anybody who is involved in the act of terrorism will be punished brutally. Why Pakistan is getting worried? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा. No offense to the population of Pakistan, no offense to the people living there. I have many friends who live there जो मेरे साथ मतलब रिसर्च करते थे, इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च करते थे. I know the people there, I know their mindset. They are like one of the most polite people I have ever talked with. अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में मिलते थे, इतने रिस्पेक्टफुल होते हैं पाकिस्तान के लोग, इतने रिस्पेक्टफुल होते हैं. दे लाइक इफ यू टॉक विद देम और इफ यू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम, द फर्स्ट थिंग दे विल टेल यू, दे विल मतलब ग्रीट यू सो नाइसली, दे विल मेक यू फील वार्मथ, एंड उसके बाद वो आपको खाना खिलाए बिना भेजेंगे नहीं. दे आर सो सच अ गुड पीपल, such a good people. I have no offense to them. But what I'm asking you is, as a student of political science, not as a researcher, I'm asking you as a student of political science, when our Prime Minister gave a statement that India will eliminate the act of terrorism, India will take strict action against terrorism, why Pakistan is panicking? Why Pakistan is panicking? हमने कहीं पाकिस्तान का नाम लिया? कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं सुन रहा था, उन्होंने भी ये कहा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट टेकन द नेम ऑफ पाकिस्तान, बट वी आर एज्यूमिंग दैट दे आर गोइंग टू अटैक अस. और ही इज एक्सप्लेनिंग टू द मीडिया पर्सन्स कि हमारी नेवी कराची चले गई है, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में आर्मी भेज दिया है, एयर स्पेस बंद कर दिया है. भाई हमने तो ये नहीं कहा कि ना हम कराची से अटैक करेंगे, बलूचिस्तान से अटैक करेंगे या रावलपिंडी में अटैक करेंगे. हमने तो ये कहा whoever is behind the act of this terrorism, we will eliminate them. Why Pakistan as a country is panicking? And they very well know कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने से एक इमीडिएट उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता. हम कौन सा 2 दिन में डैम बना देंगे? हम कौन सा 2 दिन में डैम बना के खड़ा कर देंगे, या हम सारे बाल्टी लेकर सारे इंडियन वहां जाके सारा पानी लेकर घर पे आ जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ मनी. बट पाकिस्तान इज पैनिकिंग. बताओ ऐसा क्यों? सोचा है कभी? मे बी पाकिस्तान नो द रियल सपोर्टर ऑफ टेररिज्म. देखो, अक्सर पाकिस्तान से ऐसा एक टेररिज्म का एक्ट होता है. कब होता है मैं आपको वो सिनेरियो भी बता देता हूं. वो कब होता है, आई विल टेल यू दैट सिनेरियो आल्सो. पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ हैं, आर्मी के चीफ हैं, आर्मी नेवी और डिफेंस के चीफ हैं, उनका रिटायरमेंट का टेन्योर आ रहा है. ठीक है, उनका ही इज अबाउट टू गेट रिटायर्ड फ्रॉम हिज पोस्ट. सो ही नीड समथिंग बिग. कुछ इनको ऐसा चाहिए जिससे वो अपने पोस्ट को होल्ड करे, पोस्ट को होल्ड करके रखे. इसलिए उनको कुछ ऐसा चाहिए. एंड द डेफिनेटली whoever studies political science or whoever does research or whoever is involved in all this intelligence, they very well know कि act कहाँ से आया है, क्यों आया है. I'll give you one more information. आज पाकिस्तान के 2 हाई प्रोफाइल मिलिट्री कमांडर्स का एक मीटिंग था, आज की बात है. एंड in that meeting they had open argument. One blamed the other कि आपके वजह से ये हुआ है. One blamed the other कि आपके वजह से ये हुआ है. India has called 66 countries ambassadors. Indian Ministry of External Affairs ने 66 कंट्री के एम्बेसडर्स को बुलाकर, हमारे देश में बुलाकर बिठाकर ये समझाया है कि देखो ये एविडेंस है, these are the intelligence that we have gathered, there is a clear cut information that this act of terrorism is clearly sponsored by Pakistan. Let me tell you further information. देखो ज्यादा नहीं बोलूंगा. Let me tell you further information. 2 terrorists who were the resident of Kashmir, they migrated to Pakistan in 2018 and they took a training under Jaish e Mohammed and returned back to India and thus did this act of terrorism. वो ही 2 टेररिस्ट थे जिनके घर को पहले डिस्ट्रॉय करा गया. सी, मैं आपको एक बात बताऊं, I also don't want to assume that Pakistan has done this heinous crime. मैं भी नहीं चाहता कि इसको मैं assume करूं. But we should not forget
द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड कौन था? कौन था द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसके पीछे अमेरिका ने साल लगा दिए उसको पकड़ने में? कौन था? हु वाज ही? उसामा बिन लादेन। कहां से पकड़े गए थे? पाकिस्तान के औरंगाबाद से, उनके मिलिट्री स्पेस के 10 किलोमीटर के अंदर से एक बड़े घर से उनको पकड़ा गया था। 10 किलोमीटर के अंदर, पाकिस्तान का जो मिलिट्री एरिया है उसके 10 किलोमीटर के उस एरिया के कवरेज में पाकिस्तान से उसको उड़ाया था, मतलब। So that's what I was saying. This is not terrorists doing it. Is somewhat supported by. It's clearly supported by Pakistan. आज ब्रिटेन के MI6 ने भी बोला है. MI6 has given us the intelligence to the raw. उन्होंने भी बोला है कि this act was sponsored by Pakistan. But I also, as a person, as an individual of India, I do want the Indian government take strict actions, because every citizen or every civilian of the country should feel safe, be it a person from Kashmir, or be it a person from Kerala, be it a person from Gujarat, or be it a person from Sikkim, Meghalaya. हमारे सारे नागरिक सुरक्षित और सेफ फील करने चाहिए। मैं आपको एक और चीज से बताना चाहता हूं। ऐसा एक अटैक होने वाला था, उसके ऊपर भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन था कि इंडिया में एक ऐसा अटैक होने वाला है। देयर वाज अ क्लियर कट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, बट वी कुड नॉट स्टॉप दैट अटैक। सेम विद दैट पुलवामा अटैक, उसके ऊपर भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन था कि एक अटैक होने वाला है, बट वी कुड नॉट स्टॉप दैट अटैक एज वेल। दैट इज अ बिग फेलियर ऑन आवर कंट्रीज पार्ट, कि आपके पास क्लियर इंटेलिजेंस है कि ऐसा अटैक होने वाला है, बट ऑब्वियसली पूरी खबर थोड़ी होगी कि कहाँ अटैक करने वाला है, आपको रोकना चाहिए था। दैट इज, बट डेफिनेटली अगर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है तो what I feel is our country needs to take stringent action, be it a military action or be it an economical banning of Pakistan. आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा, वरना क्या होगा, our citizen will lose confidence. अरे अगर आप अपने घर से बाहर कहीं टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, आज आप लोगों को देखिए 14 people there, 13 people there, if I ask you to, will you be confident enough to go to a vacation in Kashmir in this scenario? आप जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे सर। नहीं जाएंगे। That means आपको as a citizen of India, you are not able to visit a land which is inside the territory of India. तो क्या होगा अगर यही सिनेरियो बनता रहेगा? तो पीपल विल लूज द कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट, सो द गवर्नमेंट विल आंसर बैक एंड द गवर्नमेंट विल टेक स्ट्रिंजेंट। अब वो पाकिस्तान एज्यूम कर रहा है कि नेवी आ रहा है, INS विक्रांत पहुंच गया है, वो हम लोग कुछ कह ही नहीं रहे हैं, हम लोगों ने बोला ही नहीं कैसे अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान इज एज्यूमिंग कि INS विक्रांत आ रहा है, इंडिया राफेल भेज रहा है, या इंडिया की 7 लाख 9 लाख की फोर्सेस हैं। अरे भाई, व्हाई यू आर एज्यूमिंग? Why you are assuming? इंडिया उनके न्यूक्लियर उस पे अटैक कर रहा है। हम लोग ने कहा बोला? हम लोगों ने ये बोला कि anybody who is behind the act of terrorism, we will eliminate them and we will give them severe punishment. Why Pakistan is assuming? I am not aware. So कुछ तो होगा इसके पीछे। Let us wait कि हमारी गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, हमारे मिलिट्री फोर्सेस के एक्शन लेते हैं। नो ऑफेंस टू द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, नो ऑफेंस, बट द प्रॉब्लम इज द पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान, प्रॉब्लम इज देयर आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस के लोग नहीं, उसके जो चीफ हैं उनके अंदर प्रॉब्लम है, बिकॉज देयर आर्म्ड फोर्सेस इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। उसके पीछे एक और रीजन है, वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई अब समझ में आ रहा है पहलचन क्या करना चाहिए। हम इसका तो पहले बोला था वॉर करना चाहिए। पहलचन क्या करना चाहिए? समीर सर देखना पड़ेगा सर, पहले एनालाइज करना पड़ेगा क्या है किसका। एनालाइज करके मुझे बताना कुछ दिन के अंदर कि इंडिया को क्या करना चाहिए। ऐसा देखो, डोंट गिव डायरेक्ट आंसर्स की वॉर लड़ो। वॉर इज नॉट अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग, ठीक है? डोंट से दैट इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दो, नो।
You should give a proper answer, analyzing that situation कि भाई क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए सोच के बताना, ठीक है। तो आई वॉन्टेड टू हैव अ डिस्कशन, मुझे जानना था कि आपको इसके बारे में क्या क्या पता है, कितना पता है, ठीक है। रीड अबाउट इट, read about not only this topic, read about the other topics as well, come back with substantial solid reasoning, तभी तो नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। एनीवेज, हम where are the benefits for the support of terror, what are the benefits for support that terrorists to any country, what are the benefits for support, मतलब यू आर आस्किंग मी द क्वेश्चन कि टेररिस्ट को सपोर्ट करने से किसी कंट्री को क्या बेनिफिट होता है, दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग, यही क्वेश्चन पूछ रहे हो? यस। देखो बेटा बहुत सिंपल आता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर, अगर पाकिस्तान इंडिया पे डायरेक्टली अटैक करेगा, फॉर एग्जांपल इंडिया पे डायरेक्टली अटैक करा तो इंडिया अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि इंडिया और पाकिस्तान जब दो देश वॉर में इन्वॉल्व होते हैं, दोनों की इकोनॉमी वीक होती है, ठीक है। आपको अपने नेबरिंग कंट्री को परेशान कर रहा है, तो बेस्ट थिंग इज टेररिज्म, या किसी एक ऐसे ग्रुप को फंड कर दो जो इसको अटैक करे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड। आपने सुना है तालिबान के बारे में, सुना है तालिबान, सुना है, हैव यू हर्ड अबाउट तालिबान? अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में यूएसए आया था, ठीक है, अफगानिस्तान में यूएसएसआर आया था, जो अभी का रशिया है उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पावरफुल था, यूएसए भी डरता था, ठीक है। तो यूएसए डिसाइडेड कि भाई दोनों अफगानिस्तान में, यूएसए ने सोचा कि अगर हम यूएसएसआर को डायरेक्ट हिट करेंगे, अगर हम यूएसएसआर को डायरेक्ट हिट करेंगे, यूएसए ने सोचा कि इफ वी हिट यूएसएसआर डायरेक्टली, हो सकता है ये हमें हिट करे, तो वी विल बी एट इकोनॉमिक लॉस, दे विल बी एट इकोनॉमिक लॉस। एक ऐसे ग्रुप को फंड किया जिसको नाम था तालिबान, ठीक है, इसको फंडिंग थी, ठीक है, बोला इसको अटैक करो। तालिबान ने यूएसएसआर को अटैक करा, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, फिर यूएसएसआर बहुत दिनों के बाद अपने गलतियों की वजह से दे कोलैप्स्ड। नाउ तालिबान को जिसने यूएसए ने फंड करा था, अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट थी, अफगान गवर्नमेंट, उसको हटा के तालिबान ने वहां पर रूल करना स्टार्ट कर दिया। अभी की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। सो यूएसए रेज द ग्रुप तालिबान इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट यूएसएसआर। यूएसएसआर के खिलाफ फाइट करने के लिए यूएसए ने तालिबान को फंड किया, बट क्या हुआ, यूएसएसआर तो कोलैप्स हो गया, अफगानिस्तान गवर्नमेंट को तालिबान ने डिथ्रोन कर दिया एंड तालिबान टुक पावर, तालिबान ने पावर ले लिया वहां पे। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, यूएसए ने फंडिंग रोक दिया, यूएसए ने कहा अब हम तुम्हें फंडिंग नहीं देंगे, ठीक है। बट यूएसए ये भूल गया कि तालिबान उल्टा भी तो अटैक कर सकता है। 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे फ्लाइट लेकर मार दिया यूएसए को, तालिबान ने उल्टा अटैक कर दिया। तो देखो यूएसए ने तालिबान को क्यों ग्रो किया था, यूएसएसआर के खिलाफ ग्रो किया था, ठीक है, यूएसएसआर के खिलाफ ग्रो किया था, बट यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद यूएसए ने फंडिंग रोक दिया, तालिबान ने उल्टा अटैक कर दिया। मैं एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट अ मिनट, सिंस यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, जस्ट इफ यू गिव मी अ मोमेंट, मैं एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ। I'll try to show something, ठीक है, क्योंकि since you are keenly involved in this discussion, अब देखते हैं वो शेयर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप लोग एक पिक्चर देख पा रहे हैं? आर यू एबल टू सी एन इमेज? ये कुछ ऑफिशियल बैठते हैं, आर यू एबल टू सी? यस सर। यस सर। हाँ, ये जो इमेज है, एक मिनट दोस्त,
ये जो इमेज है ये उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, ये जो सेंटर में है ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, एंड ये जो है, ये जो इनके साइड में बैठे हैं ये तालिबान के लीडर्स थे, ठीक है। ये लगभग ये 40 इयर्स पुराना पिक्चर है, ठीक है, 40 इयर्स हो गए इस पिक्चर को, 40 से ज्यादा हो गए, ठीक है। ये यहाँ पर बैठे थे, यूएस के प्रेसिडेंशियल ऑफिस है जिसको हम ओवल ऑफिस कहते हैं। ओवल ऑफिस इज द प्रेसिडेंशियल ऑफिस ऑफ व्हाइट हाउस, ठीक है। व्हाइट हाउस के अंदर ये जो प्रेसिडेंट है ही इज मिस्टर रोनाल्ड रीगन, ठीक है। ये मीटिंग कर रहे थे कि हमने कैसे यूएसएसआर को डिथ्रोन करना है, ठीक है। बट क्या हुआ, इसने फंडिंग रोक दिया, इसने फंडिंग रोक दिया तो उसने उल्टा मार दिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। सो दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट, पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लड शेड। हाँ, समझ में आ गया चीजें कैसी होती है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बस मैं एक डिस्कशन चाहता था, मैं आपके ओपिनियन चाहता था। देखो दोस्त, मैं क्या चाहता हूँ, once you complete learning from me na, you should have an opinion, you should be able to develop an opinion about everything, मतलब every subject आपके पास एक ओपिनियन होना चाहिए। एग्जाम क्लियर करना है नहीं क्लियर करना तो दैट इज तो सेकेंडरी थिंग है, ठीक है। बट नॉलेज, यू शुड बी अ नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सारी बात छोड़ो, इट वॉज अ गुड डिस्कशन आई होप, ठीक है, कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ कि आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ गया है, ठीक है, आपको इकोनॉमी समझ में आ गया है, ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ गया है। स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी इज like if you relate the theories, principles and laws of economics to a particular region, then you are terming it as economy, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं कि दुनिया में कितने टाइप के इकोनॉमी होते हैं, क्या जवाब दोगे? दुनिया में कितने टाइप के इकोनॉमी होते हैं? थ्री। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। बताओ भाई कौन से टाइप के? आपने कहा 3 टाइप्स के होते हैं, बताओ कौन से टाइप के। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आर देयर। मिक्स्ड, ठीक है। सोशलिस्ट। क्या होता है? सोशलिस्ट। ठीक है, और सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, और ठीक है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाँ, मैं किसी और तरीके से आपको इकोनॉमी को डिवाइड करके दिखाता हूँ, ठीक है। आई विल से देयर आर 4 टाइप्स, देयर आर 4 टाइप्स, ठीक है। मैं ये बोलूंगा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। नंबर 1, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, ठीक है। नंबर 2, हम एक एक पे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए वक्त बहुत है। ट्रेडिशनल इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। There are 4 types of economy: traditional, command, market and mixed economy, ठीक है। ये है, अभी मैं किसी के बारे में भी डीपली नहीं जा रहा हूं, बट हम एक एक करके जाएंगे। ट्रेडिशनल, कमांड, मार्केट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। भाई सबसे पहले हम लेते हैं कि ट्रेडिशनल इकोनॉमी क्या होता है। व्हाट इज ट्रेडिशनल इकोनॉमी? सोचो जरा, आप अपने दिमाग में सोचो। मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि इकोनॉमिक can be divided into 4 types. One is traditional economy, command economy, market economy, mixed economy. What is traditional economy? बार्टर सिस्टम, ठीक है, कॉटन, कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है, और क्या होगा? ये तो बेटा फीचर्स बता रहे हो, ठीक है, किस टाइप का होगा। व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रेडिशनल इकोनॉमी?
बताओ, एनी आइडिया? मैं बताऊं? एग्रीकल्चर, वो तो बेटा एग्जाम्पल हो गया, वो तो एग्जाम्पल हो गया। मैं कह रहा हूं व्हाट इज ट्रेडिशनल इकोनॉमी? So, like no involvement of technology, new technology. भाई वो फीचर हो गया, फीचर। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, एक ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज नहीं होता, तो उसका मतलब ये सारी इकोनॉमी जो जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता, यार ये सब तुम फीचर्स बता रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि व्हाट इज ट्रेडिशन, तुम वो बता रहे हो कि होता कैसा है, ठीक है? पीपल शेयर गुड्स एंड सर्विस, नो साहिल। मैं व्हाट आई एम आस्किंग इज व्हाट इज, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ व्हाट, ठीक है, क्या है, और आप क्या कह रहे हो उसके फीचर्स क्या है। मैं आपको बताता हूँ, लाइक वी ऑल आर स्टैंडिंग टुगेदर एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल विच इज स्टैंडिंग देयर, ठीक है? तो समीर ने मुझसे पूछा कि भाई वो कौन है, ठीक है? तो समीर ने मुझसे पूछा कि वो, अब भाई, तो मैंने बताया, देखो सोच ही गलत है, ठीक है? मैंने बताया कि समीर, शी इज माई सिस्टर, ठीक है, शी इज माई सिस्टर, ठीक है? अब बताओ, हंस ले और, ठीक है? मैंने बताया कि शी इज माई सिस्टर, तो एंड हर नेम इज सो एंड सो, ठीक है? हर नेम इज सो एंड सो, शी इज माई सिस्टर, ठीक है? तो अब सेम वे में वो क्वेश्चन उसने पहले रेवत से पूछा था, तो रेवत क्या कह रहा है कि वो कॉलेज में पढ़ती है, उसकी एज इतनी है, ठीक है? वो कार से जाती है, कार से वापस आती है, ठीक है? और वो कॉलेज के बाद ट्यूशंस पढ़ा रही है। भाई यू आर टेलिंग द लाइफ फीचर्स, ठीक है? मैं आपसे क्वेश्चन, आप वो पूछ क्या रहे हो कि व्हाट पूछ रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज ट्रेडिशनल इकोनॉमी। आप उसके फीचर्स बता रहे हो कि ट्रेडिशनल इकोनॉमी बार्टर सिस्टम होता है, या आप उसके एग्जांपल्स बता रहे हो। व्हाट इज ट्रेडिशनल इकोनॉमी, समझो। ये कौन है? एस आर सोनल, वेयर कस्टम्स एंड कल्चर इज मोर इंपॉर्टेंट लाइक प्रमोटिंग लोकल हैंडीक्राफ्ट। ओके, दैट इज अ गुड थिंग। ओके, anything which is related to local handicraft is a traditional economy. चलो एक चीज, सोनल को मैं कुछ पॉइंट्स इसमें दे देता हूँ। आई लाइक द वे शी एक्सप्लेन। मैं आपको, द इकोनॉमी वेयर एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड। ओके, एग्जैक्ट तो नहीं है साहिल, सोनम का भी एग्जैक्ट नहीं है, फिर भी क्योंकि मुझे पता है इससे आगे आप बोलोगे नहीं, ठीक है भाई? विच इज प्रैक्टिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग बैक बिफोर सिविलाइजेशन। हाँ, सुनो, छोड़ दो, नहीं हो पा रहा है, रहने दो, ठीक है? वो कहा कहाँ था, वो हंस रहा था लड़की के एग्जाम्पल में, दुष्ट प्राणी। कौन था ये? अहिंसा, है ना? यू आर द पर्सन ना? मी एंड Yes, sir. समीर, मी एंड समीर आर वेरी गुड बॉयज, यू नो। तुम हमें Yes, समझ, sir. हाँ, तुम हमें समझते नहीं हो। हमें भारत रत्न मिलना चाहिए, ठीक है भाई? ऐसे हंसा मत करो, ये क्लास हमारे घर वाले भी देखते हैं, ठीक है? तुम्हारी शादी हो गई? No, sir. समीर से पूछो कितना टेंशन होता है। ट्रेडिशनल इकोनॉमी, देखो कोई बात नहीं, anything which is related to customs and tradition, anything which is related to customs and tradition is called as traditional economy। जो भी चीज कस्टम्स और ट्रेडिशन से रिलेटेड है उसको क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल इकोनॉमी। जो भी चीज है कस्टम से, जो भी चीज है ट्रेडिशन से, वो उसको कहते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमी, ठीक है? अब भाई, कस्टम्स और ट्रेडिशन के बीच का फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन? सर ऐसा मत बोलिए, मेरे घर वाले सुन रहे हैं। हाँ भाई, मेरे भी सुन रहे हैं, ठीक है? बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन? So customs means मतलब those customs means these are not type of मतलब those rules which are not written
and which are followed by ancient times. गलत जवाब. देखो, फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ध्यान से सुनो. आप फॉर एग्जाम्पल, लाइक फॉर एग्जाम्पल ले लो, सरोज का एग्जाम्पल ले लो. ठीक है, सरोज वॉक्स ऑन द रोड. ठीक है, ये रोड पे चल रहे हैं. ठीक है, ही मीट्स एन एल्डरली पर्सन. एक बहुत ही एल्डरली पर्सन से वो मिलते हैं. ठीक है, एंड सरोज पेस रिस्पेक्ट. वो बिल्कुल इज्जत से उनसे ही सेज नमस्ते, और यू कैन टच फीट, और मतलब जैसे भी द वे यू शोड रिस्पेक्ट, अलग अलग कल्चर में देयर आर डिफरेंट वेज, मतलब ही पेज रिस्पेक्ट. सो व्हाट सरोज इज डूइंग इज प्रैक्टिसिंग अ कस्टम्स कि भाई किसी भी एल्डरली पर्सन को जब आप मिलेंगे, यू हैव टू पे रिस्पेक्ट, यू हैव टू पे योर ट्रिब्यूट टू दैट पर्सन. आप इज्जत से उनसे पेश आएंगे. नाउ व्हाट ही इज डूइंग, अब सरोज है. नाउ सरोज हैज टॉट दिस वैल्यूज टू हिज नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, ये जो इन्होंने किया, ये कस्टम है कि हमारे घर पे कोई आया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमारे घर पे कोई आया. ठीक है, सो टू वन अंकल केम, वन आंटी केम. ठीक है, पहचान अनम्यूट करो. जी सर. तो अंकल आंटी आएंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं? नमस्ते करेंगे सर. नमस्ते करेंगे. ठीक है, फिर उनके जाने के बाद क्या करेंगे? बाय बाय. बाय बाय नहीं, उनको जो समोसे दिए हैं उसमें से जो बचे हैं उसको जल्दी खत्म करना है ना. जी सर. है ना यार. सबसे पहले आपने क्या बोला? नमस्ते करेंगे. नमस्ते इज पार्ट ऑफ कस्टम. जो आपका नमस्ते बोलने का वो है, दैट इज पार्ट ऑफ कस्टम. नाउ इफ दिस कस्टम इज फॉलोड बाय डिफरेंट जनरेशन, अलग अलग जनरेशन उसको फॉलो करे, उसको हम ट्रेडिशन कहते हैं. ठीक है, सो व्हेन यू आर ग्रीटिंग समवन और यू आर डूइंग समथिंग, आप अपने कुछ सीखते हैं, आप कुछ कर रहे हैं. ठीक है, कुछ अच्छी चीज कर रहे हैं, देन दैट पार्ट बिकम्स पार्ट ऑफ योर कस्टम. फॉर एग्जांपल, यू आर रिस्पेक्टिंग योर एनवायरमेंट, दैट इज अ कस्टम. बट सॉरी, when that custom is followed by different generations, एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन, दूसरे जनरेशन के पास तीसरा जनरेशन, तीसरे जनरेशन के बाद अगला जनरेशन, जब अलग अलग जनरेशन उसको फॉलो करते हैं, देन दैट बिकम्स अ ट्रेडिशन. समझ में आ गया कस्टम और ट्रेडिशन के बीच का फर्क? समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन? यस सर. ठीक है, नाउ सुनिए, जब एक हो गया आपका कस्टम और एक हो गया आपका ट्रेडिशन. ठीक है, अब कोई भी इकोनॉमी कस्टम और ट्रेडिशन के बेसिस के ऊपर बेस्ड है, कोई भी इकोनॉमी कस्टम और ट्रेडिशन के ऊपर बेस्ड है, तो उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमी. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, काऊ से मिल्क निकालकर अपना सस्टेनेंस करता था. उस विलेज में जितने भी लोग हैं वो काऊ या बफेलो मिल्क कर अपना उनका इकोनॉमी चलता था. नाउ दैट इज पार्ट ऑफ ट्रेडिशन. उनका एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, बिकॉज दे आर, मतलब उस विलेज में जो भी लोग हैं उसको सदियों से फॉलो करते हैं. सो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू कस्टम एंड ट्रेडिशन इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल इकोनॉमी. एक और एग्जांपल दूं. आपने सुना है कि आपकी मदर आपको बोलती होंगी, एक पर्टिकुलर डे आता है, उस डे का नाम मैं बोल रहा हूं, जहां पर आपकी मदर आपको बोलती होंगी आज हम सोना लेंगे, आज सोना लेने के लिए, गोल्ड लेने के लिए अच्छा दिन है. क्या दिन का नाम क्या होता है? जैसे पर्टिकुलर डे ना जहाँ पे सोना लेंगे, क्या होता है? धनतेरस नहीं, अक्षय तृतीया. Okay, we called it Dhanteras here. मतलब हाँ, धनतेरस इज समथिंग वेयर यू, हाँ धनतेरस में भी लेते हैं, सोना ही लेते हैं, बट स्टील, मतलब बिग लाइक रिच पीपल टेक सोना एंड पुअर पीपल लाइक अस दे विल टेक बाय एनी स्टील एंड मतलब चांदी सोने का मतलब सामान ले लेते हैं, सिल्वर का सामान ले लेते हैं. ठीक है, मतलब अक्षय तृतीया एंड धनतेरस. अक्षय तृतीया में गोल्ड लेते हैं, धनतेरस में यू बाई एनीथिंग, धनतेरस में भी ले सकते हैं. अब आपने देखा होगा कि धनतेरस के टाइम पर गोल्ड मार्केट में बहुत मतलब हाइक में जाता है, क्योंकि लोग खरीदने जाते हैं.
अब अक्षय तृतीया इज अ डे जहां पर लोग सोना खरीदने जाते हैं, धनतेरस, अक्षय तृतीया। अब आप ऐसा क्यों है? इट हैज गॉट इनकलकेटेड इन यू, यार कल तो धनतेरस है, हमें तो भाई गोल्ड खरीदना है, बिकॉज दैट वाज अ कस्टम फॉलोड बाय समबडी। फिर वो आपके मतलब नेक्स्ट जनरेशन ने फॉलो करा, फिर नेक्स्ट जनरेशन ने फॉलो करा, फिर नेक्स्ट जनरेशन ने फॉलो करा, देन इट बिकेम द पार्ट ऑफ अ ट्रेडिशन कि भाई धनतेरस आ गया है, वी हैव टू फाइंड समबडी। देन दैट काइंड ऑफ, जब इतने लोग उस दिन पे सोने चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज ट्रेडिशनल इकोनॉमी। टैंजिंग, टैंजिंग अनम्यूट करना बेटा एक बार। Why you buy gold on the day of Dhanteras? Because it is related to the belief and custom of our. नहीं, आप बताओ बिलीफ और कस्टम छोड़ दो, आपको किसने बोला कि धनतेरस वाले दिन गोल्ड खरीद? उससे क्या होता है? मदर। आपको पता है उससे होता क्या है? She says like it brings more luck and prosperity in मोर लक family. एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब उसका देखो दैट इज अ बिलीफ कि मोर लक और प्रॉस्पेरिटी रहेगा, बट एग्जैक्टली क्यों खरीदना है उसके बीच में कोई साइंटिफिक रीजन आपको नहीं पता ना? No, I don't know. No. Exactly. When you tell to your next generation, आप क्या बोलोगे? धनतेरस has come, we need to buy gold or something special, right? Yes, yes. ठीक है, बट वी ऑल, इवन आई डोंट नो कि भाई उस सोने को खरीदने से लक कैसे आ रहा है। ऑब्वियसली इफ आई एम बाइंग गोल्ड देन लक इज कमिंग, ठीक है, आई एम स्पेंडिंग मनी एंड बाइंग लक, ठीक है, बट उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन मुझे भी नहीं पता है, बट इट हैज बीन पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। किसी ने स्टार्ट किया अपना, जिसका सोने का दुकान था, उसने अपना सोना बेचने के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना लिया, देयर इज अ डे, उस दिन मेरे दुकान में आके सोना खरीद के जाओगे तो देन लक विल कम, देन इट बिकम द ट्रेडिशन। एक जनरेशन ने फॉलो करा, आज पूरा इंडिया फॉलो कर रहा है, इंडिया फॉलो कर रहा है। देन दैट काइंड ऑफ इकोनॉमी where custom is followed over a period of time, a tradition is followed over a period of time, और उस custom और tradition में कोई economy based है, तो then it becomes traditional economy। समझ में आ गई traditional economy क्या है? Yes, sir. हम कल इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे। आप लोग थोड़ा सा न्यूज़पेपर और पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका जो मतलब क्या बोलते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स और इंडियन अफेयर्स है, वो बहुत वीक है, एंड दैट इज नॉट अ गुड साइन। आपको थोड़ा और न्यूज सुनो, लिसन टू क्वालिटी न्यूज, नॉट द प्रोपोगेंडा न्यूज। यू लिसन टू बीबीसी, बीबीसी इंडिया, यू कैन लिसन, वीऑन इज अ चैनल विच इज अ गुड न्यूज, ठीक है, CNN, ठीक है, इन सारे न्यूज को सुनो, कुछ नॉलेज लो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे। कल हम इस पे और डिस्कशन करेंगे। इकोनॉमिक्स विल मेक यू रियली स्ट्रॉन्ग, मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट।